हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है, अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाएं कैसे जी, हैं? अल्लाह का आवाज़ आ शुक्र। रही है सर? हाँ जी, आ रही है आवाज़। अच्छा, आज ना मेरे पास एक तो हैंड फ्री नहीं है, मैं खुद भी इधर यूटी लाहौर ही आया हूँ, ठीक है। एक हमारी ऑफिशियल काम था, ठीक है, ग्लोर सर की सेलिब्रेशन के लिए। तो मे बी देयर विल बी डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इधर असल में मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रही यहाँ पे आज लाहौर में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस द हैज़र्ड्स, एवरीथिंग अबाउट हैज़र्ड्स, ठीक है। होपफुली यू पीपल हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट एज वेल, and today we will start the next topic that is related to disaster. Our main theme is hazards and disaster management. First of all, we will discuss the what is disaster, and in this lecture, lecture includes disaster definitions of this disaster. Then we will discuss the disaster risk, elements at risk, disaster risk assessment, disaster risk management, disaster risk reduction, and mitigation of disaster. And at last we will discuss the vulnerability, what is vulnerability and classification of vulnerabilities, ठीक है। ये चीज़ें हम we will discuss it today. And let's start the definition of disaster. As per Oxford Dictionary, it is sudden or great misfortune, calamity, a sudden calamitous event producing great material damage, loss and distress. ये जो वेबसाइट डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। एंड दिस अनदर डेफिनेशन दैट इज एन इवेंट natural or man-made, sudden or progressive, which impact with such severity that the affected community has to respond by taking exceptional measures. And exceptional measures, it is will be discussed in next slides. A more concise definition defined by Cannon in 1994, it is an event associated with the impact of natural hazard which leads to increased mortality, illness, and or injury, and destroys or disrupts livelihoods, affecting the people or an area such that they perceive it as being exceptional and requiring external assistance for recovery. An event, natural or man-made, sudden or progressive, which impacts with such severity that affected community has to respond by taking exceptional measures. These are the definition of disaster. By considering these definitions, what do people understand कि disaster और risk में क्या difference होता है? Hazard and risk में क्या difference होता है? आवाज़ आ रही मेरी आपको? यस सर, आ जी रही सर, है। आ रही है। अच्छा, एनीवन एल्स के हैजर्ड्स और इसमें डिजास्टर में क्या डिफरेंस होता है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिजास्टर मीन्स occurrence of uncontrolled, painful and serious conditions. A disaster may be a sudden tragic event that seriously disrupts the functioning of a community. It causes human, material and economic and environmental losses that exceed the community's और सोसाइटी एबिलिटी टू मैनेज यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, ठीक है। डिजास्टर ये चीज़ होती है कि हैज़र्ड तो ये कि आपको एक इज़ कोई किसी चीज़ की अकरेंस है, ठीक है। और डिज़ास्टर जो है वो जो जब वो अकर हो जाता है उसके बाद जो सूरत होती है डेट विल क्रिएट अ डिज़ास्टर। कहते हैं जी जैसे कोविड इज़ क्रिएट अ डिज़ास्टर सिचुएशन, ठीक है। कोविड ने डिफरेंट कंट्री में डिज़ास्टर सिचुएशन कर दिया, ठीक है। जैसे इंडिया है, ठीक है, उनके कंट्रोल से कोविड जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो डेट इज़ अ ह्यूज डिज़ास्टर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई, ठीक है। इट कॉजेज ह्यूमन लॉस, ठीक है, एंड हैज़र्ड में कॉजेज मटेरियल लॉस एंड इकोनॉमिक लॉस एज वेल, ठीक है। एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स सच एज अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स एंड फ्लड्स कॉज अ डिज़ास्टर, ठीक है। जो एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स होते हैं एंड मैन मेड इवेंट्स एज वेल, ठीक है, जैसे मैन मेड हैज़र्ड्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब इकोनॉमी को, मटेरियल्स को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके मतलब ह्यूमंस को, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिज़ास्टर. This is the main difference between hazard and disaster. And what is hurricane? Hurricane is a storm with a violent wind, in particular or tropical cyclone in the Caribbean.
ठीक है। कैरिबियन जो समुद्री एरिया है वहाँ पे मतलब वायलेंट विंड जो प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से जो डिजास्टर प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द डिजास्टर रिस्क? द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग danger or suffering harm and loss is called the disaster risk. It is a measure of the probability of damage to life, property, and an environment which could occur if a hazard manifests itself, including the anticipated severity of consequences to people. ठीक है। डिजास्टर रिस्क क्या है? रिस्क इज इक्वल टू लाइवलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। लाइवलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंसेज, प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस का जो मतलब प्रोडक्ट है उसे हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड द रिस्क, ठीक है। तो जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मनेस है और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, दैट इज कॉल्ड द डिजास्टर रिस्क। Next is what are the elements at risk? Following are described as an element at risk. These include people's lives and health, ठीक है। लोगों की ज़िंदगी और जो health है, these are the major element of risk. And household and community structure, ठीक है। Household and community structure is also an element of risk. That next is the facilities and services such as houses, bridges, schools, roads, hospitals, etc. Livelihood and economic activities which include jobs, equipment, crops, livestock, these are also the elements of the risk. And next is the natural environment, ठीक है। कोई ऐसे डिजास्टर भी होते हैं जिसकी वजह से आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है दैट विल इफेक्ट द दैट डिजास्टर विल इफेक्ट द इन्वायरमेंट एज वेल, ठीक है। तो ये सारे उसके रिस्क के एलिमेंट्स हैं जो कि कहीं भी ड्यू टू डिजास्टर की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिजास्टर रिस्क असेसमेंट? डिजास्टर रिस्क असेसमेंट क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस ऑफ डिटर्मिंग द नेचर, ठीक है, किसी भी डिजास्टर की नेचर को, उसके स्कोप को, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड को, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स आए हैं, ठीक है, किसी ऑफ दैट हैजर्ड, ठीक है। वो हैजर्ड आइदर दैट इज अर्थक्वेक, दैट में बी फ्लड, दैट में बी मैन मेड हैजर्ड, ठीक है। जो भी हैजर्ड है, ठीक है, उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट उसकी डिज़ास्टर की नेचर किस तरह की है, ठीक है। जब भी फॉर एग्जांपल एक अर्थक्वेक किसी एरिया में आता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है कि अर्थक्वेक की रिएक्टर स्केल के ऊपर शिद्दत कितनी है, ठीक है, ये कितनी मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखा जाता है इसका स्कोप क्या क्या है, कौन कौन से चीज़ें इसकी वजह से इफेक्ट हो रही हैं, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिटी दैट विल अफेक्ट ड्यू टू दैट अर्थक्वेक, ठीक है। ये चीज़ देखा जाता है, ये दिस इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ दैट अर्थक्वेक, ठीक है। उस स्कोप में क्या चीज़ें आ जाएंगी जी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपका जो अर्थक्वेक है अगर हैवी मतलब उसमें आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स हो रही हैं, ठीक है। तो जो बिल्डिंग्स का कोलैप्स है वो उसके स्कोप में आपने असेसमेंट के स्कोप में दिया है ना कि जी अब बिल्डिंग्स कितनी कुछ कोलैप्स हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? रोड्स उसकी वजह से कितने डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है, वो आपके स्कोप में आ जाएगा। उससे नेक्स्ट क्या है जी? लोग कितने मतलब हुए हैं, मतलब डिस्टर्ब हुए हैं उस दैट अर्थक्वेक की वजह से, दैट विल आल्सो इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ दैट अर्थक्वेक। And there are many different factors that may include in the scope of that earthquake, and then the magnitude of negative effects of hazard, ठीक है। उस hazard के नेगेटिव इफेक्ट्स कितने पड़े हैं, ठीक है, लोगों की लाइफ के ऊपर, लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर, लोगों की जॉब्स के ऊपर, ठीक है, या उनके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े हैं ऑफ दैट हैजर्ड ऑफ द कम्युनिटी एंड इट्स हाउस होल्ड विद इन एन एंटिसिपेटेड टाइम पीरियड, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो भी ड्यूरिंग दैट एंटिसिपेटेड टाइम पीरियड जिसके अंदर ये डिजास्टर जो है वो अकर हुआ है, ठीक है, और वो अफेक्ट कर रहा है लोगों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी लाइव्स को, ठीक है। दैट विल इंक्लूड इन द disaster risk assessment. There are 3 basic steps that will include in the disaster risk assessment. The first step of the process identifies hazards in the community. Its output should identify, list down and describe the nature of the hazard in terms of its recurrence, seasonality, location, possibility of early warning, and general knowledge of the people about the hazard. These are the different steps to assess that डिज़ास्टर, ठीक है। और डिज़ास्टर किसकी वजह से आता है? डिफरेंट टाइप के हैजर्ड की वजह से, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए हैं। द नेक्स्ट स्टेप इन डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट इज टू कैप्चर हैजर्ड्स vulnerability. What is vulnerability we will discuss in the next slide as well, ठीक है। at the end of this topic I have also added some slides related to vulnerability as well, and natural sources and facilities and of the community and or digitalized maps, ठीक है।
The third step will identify and assesses the vulnerabilities and capacities of the community in general, but makes sure that there is a gender desegregation of data. Special needs groups like children and disabled are given utmost consideration as well. The last step क्या है कि आपने उसमें जेंडर की मतलब उसको डिसएग्रीगेशन ऑफ डाटा होता है इसमें, ठीक है, दैट इज विल इंक्लूड द कि आपके जो कम्युनिटी है अर्थ को आया, ठीक है, उस कम्युनिटी में बच्चे कितना अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, और उस बच्चों के लिए नेक्स्ट आपने मतलब क्या चीज़ें मतलब मैनेज करनी है उनके लिए, ठीक है, फूड के लिए ये चीज़ उनके लिए मैनेज करना है, ठीक है, वो असेसमेंट के अंदर आ रहा होता है आपका। और डिसेबल पर्सन कितना इसमें हुए हैं, ठीक है, उनकी मतलब उनको मैनेज करना, उनकी लाइफ्स को उनको के लिए व्हील चेयर मैनेज करना, ये चीज़ें उसमें आपके असेसमेंट में आ रहा होता है कि हाँ आपकी ओवरऑल सिनेरियो में अर्थक्वेक के कौन कौन बंदे जो है डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है, और उनको हमने मैनेज किस तरह करना है। दिस इंक्लूड इन द डिजास्टर रिस्क असेसमेंट। एंड नेक्स्ट इज द आफ्टर द असेसमेंट द नेक्स्ट फेज इज टू मैनेज द दैट डिजास्टर, ठीक है, उस डिजास्टर के को मैनेज करना है, ठीक है। मैनेजमेंट दो तरह की होती है, ठीक है, बिफोर द डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर, ठीक है। जैसे फ्लड है, किसी एरिया में फ्लड आया तो हमें उसकी प्री मेच्योर मैनेजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं सिविल इंजीनियर्स, क्या करते हैं जितने भी मतलब फ्लड का जो रास्ता होता है जहाँ से पानी एंटर होना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपको बरसाती नाले होते हैं, तो इंजीनियर्स क्या करते हैं या जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो बरसाती नाले हैं उनकी प्रॉपर सफाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि पानी अगर वहाँ पे आए तो वहाँ पे कहीं रुके ना पानी, ठीक है। पानी अगर रुकेगा तो देन दैट विल क्रिएट द मैस फॉर स्पेसिफिक पीपल, ठीक है, जो एरिया के जो लोग हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पानी एक बरसाती नाले में आता है आके आगे गुजर जाता है, ठीक है, दैट इज़ द रियल मैनेजमेंट ऑफ दैट अथॉरिटी, स्पेसिफिक अथॉरिटी, ठीक है। नॉर्मली इसे जो पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कंट्रोल कर रही होती है। तो ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट की प्री मेच्योर प्रिपरेशन है, ठीक है, यानी कि अभी हैज़र्ड या डिज़ास्टर आया नहीं है, ठीक है, तो आपने उससे पहले ही मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर दी हुई है इसकी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपकी बिफोर डिज़ास्टर। नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जांपल कुछ सडन आपका ट्रेजिक इवेंट हो जाता है, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक है, ठीक है, वो एक सडनली मतलब एरिया को अफेक्ट किया है, तो आफ्टर दैट डिज़ास्टर वो मैनेजमेंट भी आपकी काउंट कर रही होती है, ठीक है। बेसिकली इट्स डेफिनेशन सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस टू आइडेंटिफाई एनालाइज असेस ट्रीट मॉनिटर एंड एवेल्युएट दैट स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है। दैट रिस्क में बी flood, that may be earthquake, that may be cyclones, ठीक है, ये सारे जो है चीज़ें उस रिस्क में इन्वॉल्व मतलब होती हैं, ठीक है। और इन प्रॉब्लम्स को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल फ्लड को आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली हम उसको एनालाइज करेंगे किस लेवल का फ्लड है, ठीक है। उसको हम दर्जा बंदी कर दें, ठीक है, पहले दर्जे का, दूसरे दर्जे का, तीसरे दर्जे, इस तरह हम उसकी कैटेगराइज कर देंगे उस फ्लड को, ठीक है। देन उसके असेसमेंट करेंगे ये किस एरिया को या कितने एरिया को अफेक्ट करेगा ये आपका जो स्पेसिफिक फ्लड आ रहा है, ठीक है। देन उसकी ट्रीटमेंट है कि आपने उसको फ्लड को कंट्रोल कैसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसकी प्रीमेच्योर ट्रीटमेंट क्या है कि आप क्या करते हैं जितने भी आपको बरसाती नाले हैं उनकी प्रॉपर सफाई कर देते हैं, उसमें जो झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ठीक है, उनको आप सफाई करवा देते हैं ताकि आपका जो भी फ्लड का जो वाटर है, ठीक है, आए बरसाती नाले से आगे मतलब मूव ऑन हो जाए, ठीक है, स्पेसिफिक दरिया में या स्पेसिफिक जो आपका समंदर है, ठीक है, वहाँ पे वो चला जाए पानी और जो आसपास जो वादियाँ हैं वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ये तो आ गया उसके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट फ्लड उसको क्या है जी मॉनिटर, आपने ट्रीटमेंट तो कर ली है इसकी, ठीक है, देन आपने उसको मॉनिटर भी करना है कि यार पानी जितना हमने उसको असेस किया था उतना ही पानी आ रहा है या उससे ज़्यादा पानी आ रहा है, ठीक है। ये बरसाती नाला जो स्पेसिफिकली आपने जो जिनकी सफाई करवाई है वो उनको हैंडल कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, तो दैट इज़ इंक्लूड इन द मॉनिटरिंग ऑफ दैट रिस्क, ठीक है। और रिस्क कौन सा था हमने सपोज किया था, दैट इज़ द फ्लड, ठीक हो गया। तो ये उसकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं मैनेजमेंट की। दिस इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ दोज रिस्क, ठीक है, वही जो बात मैंने आपको पहले बताई कि फर्स्ट ऑफ ऑल उस रिस्क को थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन असेस करेंगे, देन ट्रीट करेंगे, देन यू हैव टू मॉनिटर दैट ट्रीटमेंट्स जो आपने ट्रीटमेंट परफॉर्म कर लिए हुए, which includes hazard, vulnerability and capacity of people and institutions। जी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज
vulnerability and disaster risks throughout a society to avoid or to limit adverse impact of hazards within the broad context of the sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एनीवन कैन डिफाइन दिस वर्ड? जी आवाज आ रही मेरी? सर इसके अंदर इस तरह की डेवलपमेंट होगी जो मेरा आपके आवाज बहुत कम है। सर जो रिस्क वगैरह होते हैं उनको चेक करके उनके हिसाब से डेवलपमेंट कीजिए कि मतलब कोई एरिया जहाँ पे एक मुझे ना इसकी जो है ना साउंड उसको मैनेज करने दे जरा, एक मिनट मैं इसको मोबाइल के ऊपर करता हूँ। जी अब आप बताएं। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये होता है कि फ्यूचर जो है उसका वो उसके देख के उसके हिसाब से बनाए। मतलब एक एरिया जहाँ प्रोन अर्थक्वेक से जहाँ अर्थक्वेक आते हैं उससे पता है फ्यूचर में ये काफ़ी अर्थक्वेक जो है उनको बिल्डिंग जो है उसे वो आएंगे अर्थक्वेक, तो इसको वहाँ ठहरना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो देख के उसके हिसाब से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करेगा। हाँ जी, किसी हद तक आपने वेरी गुड ठीक मतलब बताया। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि आपने अपने फ्यूचर को प्रिजर्व करके प्रेजेंट को मैनेज करना है। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफाइड डेफिनेशन आपको बता दी इसकी। हाँ जी, आपकी आज की जो जॉब है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस यू हैव टू create a इट इज़ जस्ट लाइक एन असाइनमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हैज़र्ड एंड डिज़ास्टर। ठीक है, तो 30 मिनट नहीं है आपके पास, आपके पास जस्ट यू हैव ओनली 10 मिनट्स। ठीक है, इट इज़ कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, डिज़ास्टर और हैज़र्ड का डिफरेंस। ठीक है, फर्दर आगे भी हमारे पास इसमें कुछ स्लाइड्स हैं। ठीक है, जिसमें हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर की डिफरेंस आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू सॉर्ट आउट इट बाय योरसेल्फ। ठीक है जी, इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप लोग बता दें। 10 मिनट है जस्ट आपके पास। आज हम ब्रेक ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इधर मतलब ऑफिशियल जॉब पे हूँ। ठीक है, तो मैं परफॉर्म करके तो मतलब क्लास करके वो मैंने वो परफॉर्म करना है अभी। ठीक है, इसको फिर ज़रा पेंडिंग कर देते हैं, इसको एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसको रख देंगे इस जॉब को, और ये 2 स्लाइड जो हैं ये भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द मिटिगेशन ऑफ डिज़ास्टर। मिटिगेशन ऑफ डिज़ास्टर, ठीक है, नेम से आपको पता चल रहा है कि जो भी आपका डिज़ास्टर है उसको आपने उसके जो अकरेंस है उसकी जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसको आपने उसकी वल्नरेबिलिटी है उसने फॉर स्पेसिफिक पीपल फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, दैट पॉपुलेशन में इंक्लूड एनिमल एज वेल, दैट में इंक्लूड ह्यूमन एज वेल। ठीक है, तो उसको आपने लिमिटाइज करना है, उसको ख़त्म करना है। ठीक है, मिटिगेट करना है। बेसिकली मिटिगेशन इज़ द सोशल अटेम्प्ट टू रिड्यूस द अकरेंस ऑफ अ डिज़ास्टर, to reduce the vulnerability of certain populations and to more equitably distribute the resources within the society। ठीक है, तो मिटिगेशन में चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, आप किसी जगह अर्थक्वेक आया है, ठीक है, आपने क्या करना है, उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना है। इफेक्ट्स आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? यू हैव टू मेक ए शेल्टर फॉर दैट स्पेसिफिक पीपल। ठीक है, जिनके घर तबाह हो गए, ठीक है, उनके लिए शेल्टर बना रहे हैं। ठीक है, और शेल्टर ये नहीं करना कि आप एक कम्युनिटी है या आपके कोई रिश्तेदार है, आप उनके लिए शेल्टर बना के दे जा रहे हैं। ठीक है, आपने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ओवरऑल रिसोर्सेज को इक्वली सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और जिसको जितना लॉस हुआ है उसको उसके मतलब मुतबादल आपने ना वो चीज़ें उसको देनी है। ठीक है, ताकि उसको जो लॉस जो है वो कंपनसेशन हो सके उसकी। ठीक है, those activities designed to alleviate the effects of a major disaster
और emergency और long term activities to minimize the potentially adverse effects of future disaster in affected areas। अब क्या है, अब जैसे आपका बालाकोट में अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो लोगों के काफ़ी घर जो है वो तबाह हो गए, ठीक है। अब ये नहीं आपने करना कि आपने जस्ट शेल्टर बना के दे दिए तो आप लोग फ्री हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, दिस मिटिगेशन ऑफ अ डिजास्टर में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, आपने क्या करना है, आपने ऐसा एक प्रोसीजर मतलब कहना है कि आपने इनिशिएट करना है, ठीक है। आपने एक ऐसा उन्हें मैकेनिज्म देना है कि अगर फ्यूचर में इस तरह डिजास्टर है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे याद है तब मतलब यूएस से भी कुछ मतलब टीम्स आई थी, उन्होंने बताया कि जो बैंड स्ट्रक्चर होते हैं ना बिल्डिंग के अंदर, होता है बैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे बीम और कॉलम का जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो घरों में आप इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो उसको अर्थक्वेक को ज़्यादा रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम जापान की बात करें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पता कि हमारे पास अर्थक्वेक आते रहने हैं, ठीक है। वो मतलब फॉल्ट जोन में वो लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कह लें कि अर्थक्वेक के लिए रेड जोन कह लें इन सिंपल वर्ड्स। तो वो उधर लाई करें तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसी बिल्डिंग बनाई जो कि आपकी अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द इट आल्सो इंक्लूड इन द मिटिगेशन ऑफ अ डिजास्टर, ठीक है। इसी तरह जैसे कोई फ्लड है, आपके किसी एरिया में फ्लड हर साल आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी कोई कैनाल्स बनानी है, ठीक है, ऐसे कोई एरियाज बनाने हैं जो उस फ्लड को मतलब फ्लड वाटर को या तो यूटिलाइज कर लें या उसका एक पैसेज बनाने हैं, ठीक है। जो बरसाती नाले डिज़ाइन किए जाते हैं ना स्पेसिफिकली, ठीक है, वो इसी पर्पज़ के लिए होते हैं कि बरसाती नाले क्या करते हैं, ठीक है, वो आपका जो फ्लड वाटर है उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है। उस डायरेक्शन में फ्लड वाटर उस स्पेसिफिक जो कैनाल है या जो भी नाला है, ठीक है, उसमें से होके आपका जो भी वाटर बेसन है वहाँ पे जाके मतलब ड्रॉप हो जाता है पानी, ठीक है, वहाँ पे गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो दिस मैनेजमेंट आल्सो इंक्लूड इन द मिटिगेशन ऑफ अ डिजास्टर, ठीक है, कि आपको फ्यूचर में इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस ना करने पड़े। जी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं जी वल्नरेबिलिटी के हवाले से। बेसिकली इन सिंप्लीफाइड वर्ड वल्नरेबिलिटी इज द susceptibility to harm of those at risk, ठीक है। वल्नरेबिलिटी इज द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ दोज एट रिस्क, ठीक है। उनको आपने वल्नरेबिलिटी जो भी बंदे हैं उसके लिए मतलब जिनके लिए पॉसिबिलिटी है कि ये बंदे ये जो डिज़ास्टर है इन बंदों को हार्म कर सकता है, ठीक है, दीज आर वल्नरेबल टू दैट डिज़ास्टर। Vulnerable is the degree of susceptibility and resilience of the community and environment to hazards. एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन, अच्छा इसकी मल्टीपल डेफिनेशन मैं इस तरह इसलिए इंक्लूड करता हूँ कि आपको कोई एक डेफिनेशन जो याद रहेगी ना, ठीक है, ठीक है। वही बात है कि हमने इसको चीज़ों को रट्टा तो नहीं लगाना, हमने इसको मल्टीपल चीज़ों को गेन कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। जी तो मल्टीपल डेफिनेशन से इंक्लूड कर दिए जाते हैं कि आपको कोई ना कोई डेफिनेशन जो है ना कम से कम एटलीस्ट 4-5 डेफिनेशन है, ठीक है, उसमें आपको 2-3 डेफिनेशन याद रहनी चाहिए इसमें। Vulnerability depends on the characteristics of a person or group in terms of capacity to anticipate, cope with, resist and recover from the impact of that hazard, ठीक है। The process of estimating the vulnerability to potential disaster hazard or specified elements at risk is called the vulnerability analysis, ठीक है। vulnerability analysis में include the जो भी उसका पोटेंशियल डिजास्टर की वजह से जो लोग मतलब वनरेबल हैं, ठीक है, जो कि जिनकी पॉसिबिलिटी है कि ये बंदे इफेक्ट होंगे डिजास्टर से, ठीक है, उनको रिस्क को असेसमेंट करना, ठीक है, उनके रिस्क की एस्टिमेशन करना, उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। अच्छा जी, वल्नरेबिलिटी डिफरेंट टाइप्स की हैं, ठीक है, बेसिकली 4 टाइप की वल्नरेबिलिटी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो आपकी फिजिकल वल्नरेबिलिटी है। एक मिनट रहो। There are basically 4 types of vulnerability. First one is the physical vulnerability that include the hazard-prone locations of settlement, insecure and risky sources of livelihood, lack of
access to basic production resources, ठीक है, that may include the land, farm and other properties as well, ठीक है, lack of knowledge and information, lack of access to basic services. सॉरी, इसमें कॉल आ गई थी दरमियान में, तो मैं वो सुन रहा था। हाँ, नेक्स्ट इज द social vulnerability. Social vulnerability are reflected in the lack of institutional support structures and leadership, and weak family and kinship relations, deviance and conflicts within the community, and the absence of the decision-making powers. These are the social vulnerabilities. ठीक है, although these vulnerability not relevant to your subject, ठीक है, आपके सब्जेक्ट से relevant नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दी है, उसके एक बार इसमें मतलब डिस्कस कर लीजिएगा आपस में, ठीक है। नेक्स्ट इज एटीट्यूडनल वुलनरेबिलिटी एंड नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक वुलनरेबिलिटी, ठीक है। इकोनॉमिक वुलनरेबिलिटी रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है, एंड एटीट्यूडनल वुलनरेबिलिटी रिलेटेड टू द your dependencies, your resistance towards the change, and your in simple word it is related to your attitudes as well, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट आपका है जॉब है, दैट इज रिलेटेड टू द difference between hazard and disaster. You have to write you have to make an assignment, or your today's job is to write down the differences between hazard and disaster, ठीक है। और ये स्लाइड मैं आपकी शेयर कर दूंगा इसमें ग्रुप में, ठीक है। और अभी मैं टुडेज जॉब के नाम से एक आपकी असाइनमेंट भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यू हैव 30 minutes टू अपलोड दैट असाइनमेंट। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सर टुडेज? वर्ड पे बनानी है? जी हाँ, हाँ जी, वर्ड पे आपने क्या करना है, 2 कॉलम बना लेने हैं। एक साइड पे आपने हैजर्ड को डिस्कस करना है, नेक्स्ट साइड पे आपने डिजास्टर को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है आज का, ये मैं आज रात को आपको अपलोड करूंगा, ठीक है, वेब के ऊपर, सॉरी टीम्स के ऊपर, ठीक है। तो उसमें फिर आपने ये 2 स्लाइड्स हैं, ये भी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है, देख लेनी है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मीनवाइल यू हैव टू मेक एन असाइनमेंट फॉर टुडेज जॉब, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी डिस्कशन है, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आज थोड़ा सा लेक्चर ज़रा शॉर्ट भी है, तो ठीक है, थोड़ा क्विक भी है। इसकी वजह भी ये है कि मैं थोड़ा सा इधर काम वगैरह है, ठीक है, लोड सेल है, वो मैंने कैलिब्रेट करवाना है यहाँ से, ठीक है। तो उसी के लिए अभी कॉल आई हुई है इसमें। बस मैंने, और जो आपका हैजर्ड्स है ना, अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम हैजर्ड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, किस किस तरह वो उसकी अकरेंस होती है, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्थक्वेक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली वो आज डिस्कस करना है, ठीक है, इतना मतलब टाइम लैग था, ठीक है, तो इस वजह से हम उसको डिस्कस नहीं कर पा रहे, लेकिन ये कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको आज तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग उससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन है, जो आपकी डिस्कशन है, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट उसमें आपके जो क्वेरीज हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फर्दर अगर आपको लास्ट लेक्चर से कोई डिस्कस मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी डिस्कशन है, तो यू कैन आस्क विद मी, ठीक है, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी कोई नहीं है? होप सो यू अरे पीपल ये हैव। असाइनमेंट के बाद लेक्चर होगा या बस अभी खत्म बस? नहीं, इसके बाद लेक्चर नहीं होगा, ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक। जो नेक्स्ट लेक्चर है अर्थक्वेक से रिलेवेंट, ठीक है, वो नेक्स्ट वीक में ही होगा। अभी सिर्फ ये असाइनमेंट बनानी है हमने 30 मिनट हाँ वाली। जी, अभी आपने असाइनमेंट बनानी है, ठीक है, आपके पास 30 मिनट है, ठीक है, 30 मिनट में आप असाइनमेंट बना के, ठीक है, तो इसको अपलोड कर दीजिएगा इसके ऊपर, टीम्स के ऊपर। सर हैंड रिटन भी कर सकते हैं? हैंड रिटन भी कर सकते हैं, ठीक है।
कोई कितने मतलब कितने वर्ड होना चाहिए तकरीबन? आपके कम से कम कह लें कि 2 पेज तो होने चाहिए इसके, ठीक है, डिजास्टर और हैजर्ड्स के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें मतलब डेफिनेशंस को इंक्लूड करें, ठीक है, जो मल्टीपल डेफिनेशन हमने डिस्कस की हैं उनको इंक्लूड करें कि हैजर्ड क्या चीज़ होती है, डेफिनेशन ये डिजास्टर क्या होती है, ठीक है। देन यू हैव टू प्लॉट अ कंपैरिजन बिटवीन हैजर्ड एंड डिजास्टर, ठीक है। और उसकी जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस कर लें, ठीक है, कि मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही होती है, ठीक है, हैजर्ड्स और डिजास्टर को मैनेज करने के लिए जो भी आप चीज़ें टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट में ही आ रही होती हैं। ये 2 चीज़ें हैं जस्ट। थोड़ा थोड़ा टाइम इंक्रीज कर देंगे प्लीज़। 12:36 हुए हैं, तो आप 1 घंटा कर लें, 1 आवर के लिए कर दें, ठीक हाँ, है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मैं कहा 1 आवर इज़ मोर देन इनफ, तो 1:30 बजे तक आप इसको अपलोड कर दें, ठीक है। मैं फिर भी इसको इंक्रीज़ कर दूंगा, टाइम का लिमिटेशन का कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसको इंक्रीज़ कर देंगे। जी, रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम भी मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करना याद ना रहे तो आपने मुझे याद करवा देना कि सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। उसकी वजह ये होती है फिर रिकॉर्डिंग आपकी लंबी होती रहती है, ठीक है, और देन क्या होता है आपका डाउनलोड करना जो है वो मुश्किल हो जाती है चीज़ें।